Good morning, my dear students. Hope all of you are fine, doing better. Okay. Today we will learn the journal entries in the books of drawer, seller, or creditor, and in the books of drawee, buyer, or debtor. Okay. So, my dear students, in this topic, bills of exchange, when we write the journal entries, there are some transactions which are to be followed. Okay. Now, here we have two parties. The first party is a drawer or the seller or a creditor, and the second party is drawee, buyer, and debtor. Now, transaction number one. The transaction begins with sales. Drawer sales or sold goods to drawee. So, in the books of drawer, the sales entry will be drawee account debit to sales account credit. And in the books of drawee, purchase, drawee is the buyer. So, in this book, we will record purchase entry. Purchase account debit to drawer account credit. Now here simultaneously we will see both the entries in the books of drawer and in the books of drawee. In the books of drawer, sales entry, drawers sold goods to drawee. Drawee is the receiver. Drawee account debit to sales account credit. In the books of drawee, drawee is the buyer. So he will record the purchase entry, purchase account debit to drawer account credit. Drawer account credit means drawer is the giver, so drawer account credit, purchase account debit. After that, after selling the goods to drawee on credit, see that this both sales and purchase is on credit. After selling the goods on credit, the seller, the seller will draw a bill for the period of n months, means 1 month, 2 months, on which the credit is given. So here, drawer bill drawn and accepted key entry. So here the drawer draws the bill in the name of drawee. Drawer will draw the bill in the name of drawee. Drawee will accept the bill and return it to drawer. So bill receivable comes in to drawee account credit. So the entry will be bill drawn and accepted. Bill receivable comes in, bill receivable account debit to drawee account credit. Here why we will write bill receivable? Because the drawer will be receiving the amount of bill in the near future or when the bill gets matured. जिस दिन बिल का पेमेंट होने वाला रहेगा उस दिन जो है ड्रॉवर को बिल का पैसा लेना है. Till then that bill is called as bills receivable for drawer. So the entry is very simple. Bill drawn and accepted. Bills comes in account of drawer. Bill receivable account debit. 2. Who accepted the bill? Drawee. So drawee account credit. Now in the books of drawee. Now here drawee didn't draw the bill. Here we will write bills payable accepted. In the books of drawee, the acceptance entry will be written. So drawee accepted the bill which was drawn by drawer and he gave it to drawer. So your drawer account debit. 2. Drawee accepted the bill and he gave the bill to the drawer. Bills goes out. Credit what goes out to bills payable account credit. Who received the bill? Drawer. So drawer is the receiver, drawer account debit. So here both the entries are very simple. Bill drawn and accepted, bill receivable account debit to drawee account credit. Now if you check out in drawee book, bill payable accepted, drawer account debit to bills payable account credit. So these two transactions are very important. They are the base of the further transactions. The first transaction is sales and bill drawn and accepted in the books of drawer. And here in the books of drawee, the first transaction is purchase and the second is bills payable accepted. Now after that, when the bill is drawn and accepted by the drawee, okay, drawer receives the bill. Now here the bill is with drawer.
when the drawer keeps the bill with himself and afterwards he collects the money, by that time, till that time, the bill is called as retained bill. Retained bill उसको बोलते हैं जो बिल ड्रॉवर खुद के पास रखता है जब तक पेमेंट नहीं होता, किसी को नहीं देता। बिल ड्रॉवर, अगर ड्रॉवर के पास है या ड्रॉवर ने बिल रखा है तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड बिल। अब उसके बाद इन केस कोई सर्कमस्टांसिस आ गया, कोई ऐसा सिचुएशन आया in few days or immediately, if there is a certain situation where the drawer cannot keep the bill with himself, so what he does, he disposes the bill to the third party. उसको बोलते हैं disposal of bill. अब तीन तरीके के disposal है. There are three types. First type, discounting of bill with bank. Second type, endorsement of bill. And third type, bill sent for collection to bank. The type 1 bill is called as bill discounted with bank. Type 2 bill is called as endorsement of bill. And type 3 bill is called as bill sent for collection to bank, which is also known as BFC bill. Now we will go one by one. Type 1, discounting of bill with bank. Now if you see that transaction number 2 here, bill drawn and accepted, the bill is with drawer. Now here in types of bill, the drawer doesn't keep the bill with him. He transfers the bill. Now in the first type, he transfers the bill to bank. Check out here. For what? For discount. Okay. So here, when you see here the bill receivable is debited. When the bill is discounted with bank, you will check out the bill receivable is credited. So bills goes out, bill account credit. Okay. Where the bill is discounted? The bill is discounted in bank. So your bank account debit. You can write cash or bank account debit also. And when the bill is discounted with the bank, discount also get debited. As I have explained in 11th standard, jaha jaha bank, waha waha discount. Bank में bill गया, bank is the receiver, bank account debit, but the bill is discounted, discount account debit. Bills goes out from drawer, bills receivable account credit. So this is type 1. If you check out type 2, type 2 means endorsement of bill. Endorsement of bill means the bill is transferred by drawer to a third party, that is endorsee. That is endorsee. So similarly, if you see as the retained bill entry, the bill is with drawer, bill receivable account debit. When the bill is endorsed, bills goes out, bill receivable account credit. Bill receivable account credit. तो देखिए बिल आया था डेबिट, बिल गया credit. Now the bill is transferred to whom? Drawer transfers the bill to third party, and when the bill is endorsed, that person is called as endorsee. To whom the bill is endorsed, the person is called as endorsee. So endorsee account debit to bill receivable account credit. And after that, the last bill, type 3. Again in type 3, you will see here the bill is transferred or the bill is given to bank for collection. So again the bill goes out. So bill receivable account credit. Now where the bill is gone? The bill is gone for collection. So the bill is gone to bank for collection. So it is bill for collection or bank for collection. Okay. So these are the main three types. If you check out all the three types, in all the three types, if you check out the credit entry, bill receivable account credit. If it is endorsed, bill receivable account credit, bill receivable account credit. Now, in all the three entries, bill receivable gets credited, but what gets debited? The first type. In the first type, the bill is discounted with bank. So bank and discount gets debited. In second type, the bill is endorsed. So endorsee is debited. And here bill is sent to bank for collection. Then bank for collection is debited. Okay, do a correction here, beta. It's not bill for collection, it's bank for collection. It's wrongly typed here. Okay, so these are the three types of bill. Now when we come to in the books of drawing, all these three types of bill have nothing to do with drawing, because these bill are disposed by the drawer
not by drawee. So here in the books of drawee, थर्ड टाइप ऑफ बिल या वन ऑफ थ्री टाइप्स जो है, वन ऑफ थ्री टाइप्स जो है उसकी एंट्री नहीं आएगी। प्लीज ध्यान में रखना, सिर्फ वन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ बिल की एंट्री ड्रॉवर की बुक में आएगी और ये अपनी एंट्री नंबर 3 होती है। एंड ऑल्सो कीप वन थिंग इन माइंड कि यहाँ पर तीनों टाइप में से इन क्वेश्चन दे में आस्क यू ओनली वन टाइप ऑफ बिल। सो बिल जाता है क्रेडिट, और जिसके पास जा रहा है थर्ड पार्टी, बैंक होगा तो बैंक डेबिट, एंडोर्सी होगा तो एंडोर्सी डेबिट, बीएफसी होगा तो बीएफसी डेबिट। नाउ द further part of your transactions, if you check out, ultimately there are four kind of bills. First bill is retained bill, अगर ड्रॉवर खुद के पास रखता है। दूसरा डिस्काउंटेड बिल, तीसरा एंडोर्स बिल, चौथा बीएफसी बिल। मगर यहाँ पर ऐसा है ना कि दिस रिटेन बिल ये कंपलसरी एंट्री है, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट सेपरेटली। एंड दिस टाइप्स ऑफ बिल इन दिस टाइप ऑफ दिस थ्री टाइप्स दे कैन आस्क यू एनी वन। तो ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके लिया क्योंकि इसमें से कोई भी एक पूछ सकते हैं। मगर रिटेन बिल जो है कंपलसरी बिल की एंट्री है, ये आती ही है। ठीक है, अगर ड्रॉवर खुद के पास बिल रखता है, थर्ड पार्टी को किसी को नहीं दे रहा है, तो रिटेन बिल की एंट्री रहेगी ही रहेगी, चाहे आपको वो टाइप तीनों टाइप दिया हो या ना दिया हो। कीप इट इन माइंड। फिर उसके बाद तीनों में से एक टाइप आता है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री, डिसऑनर ऑफ बिल। व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनर? डिसऑनर का मतलब होता है जो ड्रॉवर ने ड्रॉवी के नाम पे बिल बनाया था वो कैंसिल हो गया। ड्रॉवर ने ड्रॉवी के नाम पे जो बिल बनाया था वो कैंसिल हो गया। द बिल गेट्स कैंसल्ड। व्हाई? देयर मे बी अ मेनी रीजन। नाउ बिफोर आई एक्सप्लेन यू दिस generalities, let me explain you the concept of dishonor of bill. If you check out, my dear student, in this entry number 2, B, bill drawn and accepted. Who draws the bill? Drawer is the person who draws the bill. On whom he has drawn the bill? He has drawn the bill on drawee. See here, it means that the drawer will collect the money from drawee in future against the bill. इसका मतलब ये होता है कि ड्रॉवर जो है ड्रॉवी से आने वाले वक्त में दिए हुए मोहलत के हिसाब से पैसा कलेक्ट करेगा बिल देके। अब जब पैसा कलेक्ट करने की बारी आती है या वक्त आया, when the time comes to collect the amount of bill from the drawee, whoever it may be, whether it may be a drawer, bank or endorsee, whoever it may be, if they approach drawee for the collection of money, the drawee will raise his hand. मेरे पास कुछ नहीं है, I don't have anything, पैसा नहीं है मेरे पास, माफ कर। So that is called bill dishonored. Okay. Now in that case, what happens? Will the drawer or the third parties keep the bill with them or will they return it to drawee? सोच के बताइए। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ रिगार्डिंग चेक। अगर किसी ने आपको चेक दिया, आपने चेक जमा किया और पता चला वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, कैंसिल हो गया, पैसा जमा ही नहीं हुआ, तो आपको जब वो चेक रिटर्न मिलता है बैंक से, तो क्या वो चेक आप रखते हो कि जिसने आपको चेक दिया था उसको रिटर्न कर देते हो, जिससे चेक मिला था? वेरी गुड। जिससे चेक मिला था हम उनको रिटर्न करेंगे ना, उसको बताना पड़ेगा ना, भाई तेरा चेक क्लियर नहीं हुआ और चेक इज डिसऑनर्ड, so kindly give me a new check. Similarly, when the bill is dishonored, the drawer or the third party, they will return the bill to drawee. They will return the bill to drawee. So the drawee is the receiver of bill. Drawee is the receiver of bill. Now here in this case, in this honor of bill, we have four bills: retained bill, discounted bill, endorsed bill, DFC bill. In any bill, कोई भी बिल हो, रिटेन्ड हो, डिस्काउंटेड हो, एंडोर्स बिल हो और बीएफसी बिल हो, कोई भी बिल हो, चारों केस में बिल ड्रॉवी के अकाउंट में ही डेबिट होगा। बिल ड्रॉवी को रिटर्न जाएगा, ड्रॉवी इज द रिसीवर, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। चारों केस में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट।
Now then in the retained bill, what gets credited? In the retained bill, the bill goes out from the drawer, तो bill receivable credit हो जाएगा. In discounted bill, the discounted bill is with bank, the bank will return the bill, so bank account credit. Endorsed bill में endorse is the credit, endorsee has the bill, endorsee will return the bill, endorsee account credit. And in BFC bill, the bill is with BFC, bank for collection, BFC will return the bill and BFC is the giver, BFC account credit. So ultimately dishonor of bill is a very simple entry कि जब बिल डिसऑनर होता है कोई भी बिल हो ड्रॉवी को रिटर्न कर देंगे, ड्रॉवी इज द रिसीवर, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट. अगर पहला बिल है रिटेन बिल तो बिल रिसीवेबल, अगर डिस्काउंटेड बिल है तो बैंक, अगर एंडोर्स्ड बिल है तो टू एंडोर्सी अकाउंट क्रेडिट, बीएफसी बिल है तो टू बीएफसी अकाउंट क्रेडिट. ऑल दिस डिसऑनर ऑफ बिल में से कोई भी एक ही एंट्री आएगी, चारों में से कोई भी एक. ठीक है. अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री सिर्फ एक ही है, कोई भी बिल हो, क्योंकि ड्रॉवर की बुक में 1 of 3 टाइप्स की एंट्री नहीं आती है. तो कोई भी बिल हो, चारों केस में बिल ड्रॉवी के पास आता है और ड्रॉवी को रिटर्न कौन करता है? फर्स्ट पार्टी, दैट इज ड्रॉवर. थर्ड पार्टी रिटर्न नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी को देते हैं, फर्स्ट पार्टी ड्रॉवी को देती है. तो ड्रॉवी के पास बिल आया रिटर्न, बिल कुछ काम का नहीं है तो बिल आ गया रिटर्न उसके पास, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट क्रेडिट. ठीक है. आफ्टर दैट अभी नेक्स्ट एंट्री इज इंटरेस्ट चार्ज्ड. वेरी सिंपल. ड्रॉवर इंटरेस्ट कब चार्ज करता है? जब बिल डिसऑनर होता है. डिसऑनर होने के बाद कुछ तो एक्स्ट्रा पैसा लेना चाहिए ड्रॉवी से, एक फाइन मानना चाहिए, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट. द ड्रॉवर टेक्स अ फाइन इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज चार्ज. ड्रॉवर किससे लेगा? ड्रॉवी से. तो इंटरेस्ट इज चार्जेबल, मतलब इंटरेस्ट आया नहीं है. फर्स्ट वी विल रिकॉर्ड द एंट्री ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल, जो इंटरेस्ट मिलने का हमको लेना है. ओके. लेते नहीं है तुरंत, हम लोग क्या करते हैं, पहले उसकी चार्ज की एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं, बाद में लेंगे हम लोग. तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर आप देखेंगे ड्रॉवर अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट और ड्रॉवी की बुक में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. तो उल्टा है, ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और ड्रॉवी की बुक में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर. तो ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पर ड्रॉवी की बुक में इंटरेस्ट डेबिट करेंगे, ड्रॉवर को क्रेडिट करेंगे. ठीक है. फिर इसके बाद नोटिंग चार्जेस. नोटिंग चार्जेस मीन्स इट इज वन काइंड ऑफ अ चार्ज which is to be paid by the holder of the bill. The holder may be drawer, bank or endorsee on account of dishonor of the bill. जब बिल डिसऑनर होता है तो वहां पर अगर होल्डर जो होता है बिल का, अगर उसको कंप्लेन करनी है नोटरी पब्लिक में ड्रॉवी के अगेंस्ट में, तो जब वो कंप्लेन करने जाएगा, अपना कंप्लेन रखेगा कि मेरा बिल का पेमेंट नहीं आया है, तो ही हैज टू पे द चार्जेस. दैट चार्जेस आर कॉल्ड एज नोटिंग चार्जेस. ठीक है. ये एक तरीके का जो है यहाँ पर फीस भरना है आपको उसका कंप्लेन रजिस्टर करने की. तो यहाँ पर अगर ड्रॉवर है, बैंक है, एंडोर्सी है, हुएवर, पैसा ये लोग के जेब से जाएगा, मगर वो लोग लेंगे किससे? ड्रॉवी से. तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट. ठीक है. अगर रिटेन बिल है तो एंट्री आएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉवर के पास एक कैश आ रहा है, कैश गोस आउट. तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. अगर डिस्काउंटेड बिल है तो डिस्काउंटेड बिल में भी पैसा ड्रॉवी से लेंगे बाद में, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, मगर भरेगा कौन जगह पे? बैंक भरेगी थ्रू बैंक अकाउंट क्रेडिट. और अगर एंडोर्स बिल है तो एंडोर्स बिल में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, मगर भरेगा कौन? होल्डर ऑफ द बिल. किसके पास बिल है? एंडोर्सी. तो एंडोर्सी भरेगा, तो जगह पे एंडोर्सी भरेगा. तो देखिए जब नोटिंग चार्जेस की एंट्री आती है तो थोड़ा डिफरेंट है, तीनों में ड्रॉवी डेबिट होगा, मगर जिसके पास बिल रहेगा वो भरेगा. अगर यहाँ पर रिटेन बिल है तो ड्रॉवर भरेगा टू कैश, डिस्काउंटेड और बीएफसी बिल है तो बैंक भरेगी, और एंडोर्स बिल है तो एंडोर्सी बिल भरेगा. और नोटिंग चार्जेस में बहुत सिंपल है,
देखो ऊपर इंटरेस्ट की एंट्री में क्या था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट की जगह पे नोटिंग चार्जेस लिखने का, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। एंड लास्ट में आता है बेटा पार्ट कैश एंड न्यू बिल ड्रॉन। पार्ट कैश एंड न्यू बिल ड्रॉन का मतलब होता है कि जब पुराना बिल डिसऑनर्ड हो गया, कैंसिल हो गया, तो उस वक्त ड्रॉवर ड्रॉवी को बिल रिटर्न कर देता है, ठीक है। और ड्रॉवी ड्रॉवर को बोलता है कि नया बिल बना और मोहलत दे, नया बिल बना। मगर वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर समझो 10,000 का पुराना बिल था और ड्रॉवी के पास 10,000 नहीं थे, 5,000 ही थे, तो वो क्या करता है, अपने बिल का अमाउंट वहाँ पर कम कर देता है। पैसा, बिल तो 10,000 का था, पूरा 10,000 तो नहीं आया, ठीक है, तो बिल क्लियर नहीं हुआ, तो बिल तो कैंसिल हो जाएगा, मगर ड्रॉवी 5,000 देने को तैयार है। तो देखो पूरा कैश आया क्या, नहीं, पार्ट कैश आया। तो यहाँ पर जब ड्रॉवर को पार्ट कैश मिलेगा तो ड्रॉवर के पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है, ड्रॉवी। ड्रॉवी इज द गिवर, ड्रॉवी अकाउंट क्रेडिट। और अगर ड्रॉवर के बुक में, ड्रॉवी की बुक में चेक करो, ड्रॉवी की बुक में पार्ट कैश, ड्रॉवी ने किसको पेमेंट किया, ड्रॉवर को, तो ड्रॉवर इज द रिसीवर ऑफ कैश, तो ड्रॉवर के पास पैसा आया, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट। पेमेंट किसने किया, ड्रॉवी ने किया, तो ड्रॉवी के पास है कैश गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। मगर यहाँ पर जो है पार्ट कैश है, ठीक है। उसके बाद आएगा न्यू बिल। न्यू बिल किस पे बनेगा, बैलेंस अमाउंट पे। बैलेंस अमाउंट कितना, 10 में से 5 आ गया तो बचा कितना, 5, तो 5,000, शायद उसमें इंटरेस्ट आ जाए, कुछ और आ जाए, नोटिंग चार्जेस आ जाए, तो जो भी पैसा बचा है, ठीक है, आना बाकी है, उसका नया बिल बनेगा। बैलेंस पे नया बिल बनता है। बैलेंस मीन्स जो पैसा हमें लेना है ड्रॉवी के पास से, हमें मतलब ड्रॉवर को लेना है ड्रॉवी के पास से, एक्सेप्ट पार्ट कैश, क्योंकि पार्ट कैश मीन्स पैसा आ गया है, उसका बिल नहीं बनेगा। जो पैसा नहीं आया है बिल उसका ही बनता है। तो न्यू बिल की एंट्री बेटा बहुत सिंपल है। इस न्यू बिल की एंट्री है ना बेटा, सेम इसके ही है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। देखो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है। एंड लास्ट में यहाँ पर बिल हॉनर्ड, मेट और क्लियर। हॉनर्ड का मतलब क्या, बिल क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 4 टाइप के बिल थे, 4 टाइप के बिल। 4 में से पहला बिल रिटेन और आखिरी बिल बीएफसी, ठीक है। तो पहला और आखिरी, ठीक है, यो 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 यो, ठीक है। तो ये जो पहला बिल और आखिरी बिल की ही एंट्री आएगी ड्रॉवर की बुक में। बाकी जो डिस्काउंटेड बिल है और एंडोस्ड बिल है, अगर वो क्लियर होता है तो उसका पैसा बैंक को और थर्ड पार्टी को मिल जाता है, ड्रॉवर को नहीं मिलता, तो उसकी एंट्री नहीं आएगी। तो रिटेन बिल की एंट्री आएगी, बिल हॉनर्ड, रिटेन बिल हॉनर्ड। रिटेन बिल हॉनर्ड का मतलब होता है बिल के बदले कैश। तो ड्रॉवर के पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, किसके बदले आया, बिल के बदले, बिल्स गोज आउट, बिल रिसीवर अकाउंट क्रेडिट। और अगर बीएफसी बिल रहेगा तो बीएफसी मतलब बैंक जो है ड्रॉवर की नौकर है, बैंक ड्रॉवर के लिए पैसा कलेक्ट करती है और ड्रॉवर के बैंक अकाउंट में जमा करती है, खुद नहीं रखती है। तो उसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ये बैंक अकाउंट ड्रॉवर का है, ड्रॉवर के बैंक अकाउंट में जमा होगा, ठीक है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, अब बैंक नौकर है तो फोकट में तो काम नहीं करेगी, 200-300 रुपए तो चार्जेस काटेगी, तो जो पैसा जमा आया है उसमें से पैसा कुछ काट के बैंक में जमा करेगी, ड्रॉवर के अकाउंट में, बाकी बैंक चार्जेस में जाएगा। जहां जहां बैंक वहां वहां बैंक चार्जेस, दोनों डेबिट। टू, जितने का बिल था बीएफसी में भेजा था कलेक्शन करने के लिए, वो बीएफसी में जमा हो गया, तो देखो आप बेटा, जब बीएफसी में भेजा था बीएफसी अकाउंट डेबिट, अब बीएफसी में कलेक्ट हो गया, बीएफसी में पैसा जमा हो गया, बीएफसी अकाउंट क्रेडिट। एंड बिल हॉनर्ड, बिल मेट, बिल क्लियर्ड। ड्रॉवी की बुक में बहुत सिंपल है, ड्रॉवी ने बिल वापस लेके पेमेंट किया है, तो ड्रॉवी के पास बिल आया, रिटर्न आया, तो ड्रॉवी ने बिल ले लिया, ड्रॉवी ने बिल ले लिया और बिल के बदले क्या दिया, कैश दे दिया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ओके। और उसके बाद आता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या रिटायर हुआ बिल, रिटायरमेंट का मतलब होता है जो मोहलत दी गई थी उससे पहले पेमेंट आ गया, ठीक है।
तो उसकी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल अकाउंट क्रेडिट। और ड्रॉवी की बुक में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। बहुत सिंपल है, यहाँ पे कैश डेबिट, यहाँ पे कैश क्रेडिट, यहाँ पे रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट मतलब डिस्काउंट, और यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे कैश और डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पे कैश और डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। एंड लास्ट में आता है रिकवरी एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी। इसमें सिर्फ इसको स्टडी कर लो, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, और यहाँ पर ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट टू डिफिसिट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना बेटा, ड्रॉवर की बुक में अगर ड्रॉवी डेबिट हो रहा है तो ड्रॉवी की बुक में ड्रॉवर क्रेडिट होगा, और अगर ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी क्रेडिट हो रहा है तो ड्रॉवी की बुक में ड्रॉवर डेबिट हो रहा है। तो याद रखना, ऑपोजिट हो जाता है। अगर ड्रॉवर ड्रॉवी को डेबिट कर रहा है तो ड्रॉवी ड्रॉवर को क्रेडिट करेगा, अगर ड्रॉवर ड्रॉवी को क्रेडिट कर रहा है तो ड्रॉवी ड्रॉवर को डेबिट करेगा। एक डेबिट हो रहा है यहाँ पर तो दूसरा उसका अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा, अगर यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है तो वहाँ पर वो डेबिट हो जाएगा। So this is regarding all the explanation of journal entries in the books of drawer and drawing. Thank you. बेटा ये जर्नल एंट्रीज आप नोटबुक में कॉपी कर लेना। अगर आपको उसको समझ में नहीं आया तो आप, आपको जब अगले बार एक्सप्लेन करूँगा तो हम लोग उसको अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, अच्छे से सारी जर्नल एंट्रीज आप नोटबुक में कॉपी कर लीजिए अपने। अल्लाह हाफिज़।